poverty, and we discussed about the main concepts of poverty and measures of poverty, how it calculated. We did the current as well. Now we are talking about the programs and policies. Okay? Before we are going through with the programs and policies, as I told you, I'll just ask you some questions and after that we will go for the topic. But I believe we need to start it with the topic. We're going to wind up the topics because maximum questions are coming from the same. जो maximum questions हैं आपके जो भी I searched out, that is coming from your theoretical, like your policies and programs. So you before need to understand about the policies and programs, फिर हम start करेंगे अपना test का part. ठीक है जी? So we said that as we are talking about the elevation of poverty programs, it is basically started in after independence, obviously, because in after independence we started saying that government started making plans. In 1951 we started making planning commission. 1951 we started making plans. First 5 year, second 5 year, third. In each plan we have a specific objective. As I told you, I will give you the homework and you have to go for it. Please, whatever I'm writing, try to filling the blanks. I'm just giving you the body of the topic. You have to fill up the things and you just keep these things with yourself, because यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं. जो भी क्वेश्चंस हैं अभी हम प्लानिंग करेंगे, जब भी करेंगे, लेकिन आई एम नॉट स्टार्टिंग विद द प्लानिंग विद द फर्स्ट प्लान. आई एम स्टार्टिंग विद द फिफ्थ प्लान बिकॉज द फिफ्थ प्लान वाज स्टार्टिंग विद द पॉवर्टी एलिवेशन. तो पहले 4 प्लान जो थे वो पॉवर्टी से रिगार्डिंग नहीं थे. तो अगर मैं आज प्लान स्टार्ट कर दूंगी तो फिर प्लानिंग का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा. दैट आई डोंट वांट टू बी इन द पार्ट ऑफ द पॉवर्टी. तो उसको भी छोड़ रहे हैं. आपको जो मैं बता रही हूँ आप वो जरूर प्लीज प्रिपेयर करके रखिएगा. लाइक यहाँ लिख लीजिएगा प्लान्स. ये चार्ट आप प्रिपेयर करके रख लीजिए. दैट आई विल आस्क यू इनटू द प्लानिंग चैप्टर एज वेल. हियर वी हैव प्लान्स. This is the years when the plan was being started. That is the objective of plan. Then target and achievement, and then slogan. You need to prepare your chart with this respect. Like you talk about the first 5 year plan, it was from 1951 to 1955. So it is a 5 year plan. What was the objective? Self-reliance, self-sufficiency, as well as agriculture product should be on the up to the mark. Production of the agriculture sector, strengthen the agriculture sector, self-sufficiency in food grains. Achievement and target. What was the target of the growth rate and what was the achievement of the growth rate? Done. And what was the slogan of that target, that plan? In that way you have to prepare all the plans from 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ये plans का chart आप prepare करके रखेंगे. Ultimately from there only we can find out, but I will to start it from there. Fifth plan, यहीं से हम लोग इसका results निकाल के ला रहे हैं. क्योंकि अगर आपने plans prepare कर लिए, you may able to answer many of Indian economic questions. Half of your poverty, half of your unemployment, employment, half of your agriculture industrial revolution, same as to be exports and imports and international trade. तो आपके 5 टॉपिक्स के पॉलिसी implications यहाँ से इस प्लान के टॉप चैप्टर से स्टार्ट हो जाएंगे. So prepare the plan chart. In later on stage when we will go through with the topic, we will prepare it once again, but you should keep it with you. आपको ये plan का chart prepare करना है और अपने पास में रखना. Done? So we are starting with the poverty elevation programs, and the poverty elevation program says that 5th 5 year plan was there. 5th 5 year plan started in 1912. We started in 1951. 69? Very nice. 74 to 79. Our 5th plan was from 1974 to 79. इसीलिए कहा है आपसे plans के years याद कीजिए. हम लोग क्या random देखते हैं. अगर somebody gonna ask me when the 3rd plan was there, starting 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. 3 plan खत्म हो गए. 67, 60. Please don't do this.
We are making it a 5-year gap, but there was very much of havoc created in the third plan, as we know. मैं आपको प्लान स्टार्ट नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज डोंट कीप मी ओवर देयर, बट स्टिल आई एम गिविंग यू अ बिट ऑफ स्टोरी ऑफ थर्ड प्लान. फर्स्ट 5-year plan was regarding the agriculture. Why? Reason was we were just got the independence. इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहली ऑब्जेक्टिव क्या थी? इकोनॉमी को सेल्फ सफिशिएंट किया जाए, अपनी इकोनॉमी को फूड ग्रेन्स अवेलेबिलिटी कराई जाए ताकि हम फिर से दूसरे नेशंस के ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाए, क्योंकि डिपेंड होंगे तो फिर ट्रेड करेंगे तो फिर से वो ब्रिटिश राज आ जाएगा. सो वी डोंट वांट ट्रेड, वी वांट टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन द फर्स्ट 5-year plan. So we targeted high to increase the productivity of agriculture sector. That's it. We targeted, we achieved, and we gone self-sufficient in 5 years. Then the second plan was when you have everything achieved through the agriculture, the next objective was to industry. So you go for heavy and medium industries development into the second 5-year plan. In second 5-year plan, we emphasize the basic core industries of Indian economy, which was being proposed and which were being run through by the government only. Privatization नहीं था तब तक. So we started with the industrial development in the small scale and big industries. That was again achieved. Then 51 to 56, 55, 56 to 60, 61 to 65 थर्ड प्लान होना था 5-5 साल का. लेकिन 61 से 65 के बीच में क्या हुआ? Will not answer. एक और हुई थी. और क्या हुआ उसमें? आप क्लास में नहीं थे? ये क्लास में आज पहली बार ही करा रहे हैं. इंडो पाक वॉर सेकंड. कुछ और हुआ? अरे 66 में हुआ ग्रेट फेमाइन, बंगाल फेमाइन. सो प्लीज, हमने यहाँ से देखा कि 3 चीजें जो हमारे इकोनॉमी को इफेक्ट कर गई. दैट वाज ऑन फर्स्ट वॉर विद चाइना, सेकंड वॉर विद पाकिस्तान एंड थर्ड ऑफ द बंगाल फेमाइन. जो हमने अपना प्लान बजट रखा हुआ था कि यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ाएंगे, यहाँ एग्रीकल्चर को इंक्रीज करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट करेंगे, दैट वाज बीइंग अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द वॉर्स एंड ड्यू टू द फेमाइन व्हाटएवर द आउटपुट सपोज्ड टू बी डन, दैट वाज नॉट बीन डन. जो हमने सोचा था आउटपुट होगा, फिर सेल्फ सफिशिएंसी हो जाएगी, रॉ मटेरियल आएगा, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, वो सब भी कोलैप्स हो गया. तो अल्टीमेटली वी प्लान्ड आउट कि अभी 66 में जो चीज़ें कोलैप्स हो गई हैं सारी, हम एकदम से दोबारा से नया प्लान नहीं बना सकते, क्योंकि जब तक आप पुराने टारगेट्स को पूरा नहीं करते हैं, चाहे उनको अचीव ना कर पाए बट एटलीस्ट रन थ्रू विद दैट. जब तक आप उन टारगेट्स के थ्रू नहीं जाते आप नेक्स्ट प्लान नहीं प्रिपेयर कर सकते. तो यू हैव टेकन 3 प्लान हॉलीडे. आपने 3 1-year प्लान चलाए, 66, 67, 68. 3 साल आपने 1 year के प्लान चलाए. 66 तक तो हम वी वर इन द मेस. So 3 years we have given the economy to be stagnant. फिर हम नया प्लान बनाएंगे. तो फिर नेक्स्ट जो हमारा 4th प्लान हुआ कब से स्टार्ट हुआ? 69, 70, 71, 72, 73, 74. 74 में 4th प्लान खत्म हो गया, 5th प्लान स्टार्ट हुआ 74 में. इसी तरह एक बार फिर से प्लान हॉलीडे हुआ, ब्रेक हुआ. फिर 1990 से पहले जब हमारे पास इट वॉज इकोनॉमी वॉज अबाउट टू collapse in 1990. So 1991, 1992 हमने 2 साल का गैप लिया. We proposed the LPG policy, liberalization, privatization, globalization. Then we started the next plan into 8th plan in 1992. Ready? तो मैं फिर से आपको ये बात कह रही हूँ, this is static. हम इतना नहीं लड़ते हैं कि हमें पता ही ना हो इंडिया की कितनी वॉर्स हुई हैं. We have only 2 people to fight, Pakistan and China. And we have just gone through with the 4 to 5 fights. Fights means to say the wars. So we need to keep up into the points that how many wars we have and how many wars we win and how many wars we lose. So that's why we need to understand the number first of all, and due to the wars whatever the consequences we faced. हमारा सबसे बड़ा consequence क्या हुआ? हमारा plan fail हो गया. ना? So that's why आप plan ये चीजें static है, ये दोबारा से change नहीं होने वाली. Getting my point? It is not gonna change with the rectification of any. आज कोई डेवलपमेंट हो जाए वो सब चेंज नहीं होने वाला, वो फिक्स्ड है. इसलिए जो चीज़ें फिक्स्ड हैं उनको तो एक बार ऐसे ही देखना है और ऐसे ही रहेंगी. जो डेली चेंज हो रहा है उसको बार बार देखना है. तो ये फिक्स्ड है, कांस्टेंट है. सो प्लीज डोंट मिस दिस टारगेट.
इसमें से आपके बहुत सारे पॉलिसी प्रोग्राम्स आपके यहाँ से निकल के आते हैं. तो प्लीज मेक दिस टेबल एंड पुट इट इनटू योर स्टडी मटेरियल जो भी आपके पास है. डन. इजीली अवेलेबल हो जाएगा. यू कैन गो थ्रू एनी सर्च ऑफ साइट. इफ यू वांट यू कैन टेक अ बुक फ्रॉम मी एंड यू कैन टेक अ क्लिक आउट ऑफ इट. ओके. So we said that we started this fifth 5-year plan in 1949 to 74 to 79. That was the first time. फोर्थ में तो फिर से दोबारा ठीक किया सब कुछ. सेल्फ सफिशिएंट हो, इंडस्ट्री जो खराब हो गई, वॉर्स हो गई, फेमाइन हो गया. फिफ्थ में we said that because of that almost 10 years 61 से स्टार्ट हुए थे और खत्म होते होते 74 आ गया. वो 12 साल आपके पास फिर से काइंड ऑफ हैवॉक था. काइंड ऑफ यू वो ट्राइड इन बिटवीन द ग्रीन रेवोल्यूशन एज वेल. वो थोड़ा सा सक्सेस हुआ, 4 साल के बाद उसके भी रिजल्ट्स आने जो बंद हो गए. सो यू वांट दैट समथिंग शुड बी देयर इन द इकोनॉमी व्हिच विल लीड द इकोनॉमी वंस अगेन. एंड दैट द प्रॉब्लम वाज पॉवर्टी. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेमाइन की वजह से हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई. वॉर्स की वजह से रिसोर्सेज का शिफ्टिंग हो गया. इकोनॉमी को डेवलपमेंट प्लान्स के ऊपर खर्चा करना था. आपकी एजुकेशन, आपकी हेल्थ, आपकी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर गवर्नमेंट ने सारा खर्चा डिफेंस में खर्च कर दिया. तो दैट वाज लाइक द ईयर जब आप 10 साल हुए, इंडिपेंडेंट हुए, अभी आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, बट इकोनॉमी विच इज गवर्नमेंट विच वाज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम दैट अगेन collapsed. Not collapsed but been shifting the resources. That's why in 1974 that was the first time हमने जो पहला स्लोगन लगाया ग्रीन रेवोल्यूशन को हटाने के बाद, 66 के बाद. ग्रीन रेवोल्यूशन का बीच का एक स्लोगन है हरित क्रांति वाला. बट इन दिस प्लान वी गो फॉर गरीबी हटाओ. तो पहली बार हमने जो स्लोगन दिया गया बेसिकली स्पेसिफिकली टू द poverty elevation, that was गरीबी हटाओ. As I've seen the paper as well in which they asked कौन से प्लान में गरीबी हटाओ स्लोगन पहली बार आया. तो that was the paper. So fifth 5-year plan when we are focusing on the removal of poverty in the rural and the urban town areas. And in this we aim to bringing the largest section of the poor society should be come out of the poverty line. कि जितने मैक्सिमम लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर चले जाएं ताकि हमारी कंट्री में नंबर ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन रिड्यूस हो सके. सो दैट वाज अ बेसिक टारगेट. देन अगेन इन द 6th प्लान हमारा वही ऑब्जेक्टिव रहा क्योंकि वही प्लान चलता जा रहा था. एक बार जो मुहिम हम छेड़ते हैं उसको हम फिर आगे वाले चैप्टर्स में, आगे वाली पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स में कंटिन्यू रखते हैं. नई और ले आते हैं बट पुरानी वाली को चलाते रहते हैं. मनरेगा आई 2005 में, वो अभी तक चल रही है ना. ग्रामीण स्वरोजगार योजना आई 1995 में, वो अभी तक चल रही. तो somewhere somehow whenever we start the programs it has just been initiated but it started go through with the time to time. चाहे गवर्नमेंट्स चेंज हो जाती हैं वो प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज कंटिन्यू रहती हैं. डन. सो इन द 6th प्लान दैट वाज स्टार्टिंग इन, कब स्टार्ट हुआ 6th प्लान? 80 to 85. So 1980 to 85 they said that 40 rupees was the per capita income or the minimum income by per month per person. 40 रुपए एक महीने में एक व्यक्ति के पास खर्चे के लिए होंगे तो वो गरीबी रेखा वाला कंसीडर किया जा रहा था. तो दैट वाज अ वेरी मच लेस मनी दैट वाज बीइंग कंसीडर्ड टू बी अ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी बिकॉज मेनी पीपल वर बिलो पॉवर्टी लाइन. 40 से भी नीचे वाले लोग ज़्यादा थे. तो गवर्नमेंट ने इसमें अपनी पॉवर्टी रिडक्शन के लिए बहुत बड़ा जोर दिया कि वी नीड टू रिमूव द पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया एंड सो ऑन. वन मोर मेजर वाज 10th 5-year plan. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट प्लान्स देन आई विल कम टू द पॉलिसीज. ठीक है. तो 5th प्लान में हमने मेन काम किया जिसमें 40 रुपीज़ वाली बात की. 6th प्लान हमने कंटिन्यू किया. 7th प्लान में हमने पॉवर्टी से इम्पॉर्टेंट हमने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने की बात की. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉवर्टी रिडक्शन एंड द इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? इफ यू रिमेंबर हमने MPI किया है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किया है. तो उसमें सिर्फ पैसों की बात नहीं ना की. दे डिडंट टॉक अबाउट कम अप below poverty line. They said that a person should live healthy, clean, environmental life. आपके पास सैनिटेशन भी हो, क्लीनिंग भी हो, आपकी एजुकेशन भी अच्छी हो, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो, तो अल्टीमेटली योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू बी अपग्रेडेड. ओनली देन यू कैन कम आउट ऑफ द पॉवर्टी. सो हमारा जो 6th प्लान और 7th प्लान था, 7th बेसिकली 7th प्लान में हमने इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात की. और वो कैसे होगा? अगर आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, नई नई इनकम के सोर्स होंगे तो ऑब्वियसली आप पॉवर्टी से भी बाहर आ जाओगे.
8th plan is the same, but it was started to increase the employment opportunity, but it was failed because Janata government has been collapsed and so on happened. 8th plan जो हमने mainly 10th plan, इसके बाद जो main plan था 8th भी था, but 10th plan में main हमने दोबारा से किया, जिसमें हमने target किया by 2007 तक हम अपनी poverty को 26% से 21% लेके आएंगे, and we have achieved that target. तो poverty reduction यही मैंने आपसे कहा, हर एक प्लान के कुछ टारगेट्स हैं और कितनी अचीवमेंट है, कितने टारगेट है कितनी अचीवमेंट है. इसी से आपको एक क्वेश्चन और निकल के आएगा, कौन सा प्लान सक्सेसफुल रहा आज तक. जो आपने टारगेट रखा हो 6% ग्रोथ रेट और आपने 6.2 पा लिया या 6 ही पा लिया. हमेशा प्लान क्या होता है 5.6, 5.3, 4.6. आप अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस. लेकिन कोई 2 प्लान ऐसे हैं जिसमें हमने अपने टारगेट्स प्री सेट प्रॉपर्ली. हमारे कोई 2 प्लान ऐसे हैं जिसमें हमने अपने टारगेट्स को अचीव किया. सो वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू राइट डाउन इट वाज अ सक्सेसफुल प्लान. यू हैव टू सर्च आउट, यू हैव टू मेक अ चार्ट ऑफ इट. मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इसमें से 2 क्वेश्चन कहीं ना कहीं से जरूर आ जाते हैं. सो प्लीज प्रिपेयर दिस चार्ट. ओके, सो 10th 5-year प्लान स्टेज दैट कि आपको जो पॉवर्टी रिडक्शन करना है 21% तक लेके आना है. एंड आपको 11th प्लान में हमने उसी को डिक्रीज करके 10% कर दिया. वी हैवंट अचीव्ड येट, तो अभी भी हम उससे अबव है 10% से. दैट वाज ऑल अबाउट द प्लानिंग्स. 12th प्लान के बाद हमने नीति आयोग में कन्वर्जन कर दिया. सो वी हैवंट एनी डेटा रिगार्डिंग आफ्टरवर्ड्स. व्हाट वी गॉट इट, 5th 5-year plan, that was the ultimate objective to removal of poverty, and it was a 40 rupees of minimum requirement of money. Then 6th plan is a continuation. 7th plan, standard of living to be increased. 8th plan, employment generation should be required. 9th plan was not about this, वो कुछ और चीज़ के लिए था. 10th प्लान हमने टारगेट रखे 25% से 21% लेके आना है. 11th 12th प्लान में हमने कहा उसको 10% तक इंक्रीज करना है. दैट इज जस्ट अ क्रक्स ऑफ द स्टोरी ऑफ द प्लान्स रिगार्डिंग द पॉवर्टी एलिवेशन. होप यू गॉट इट. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टुवर्ड्स पॉवर्टी एलिवेशन. आई कैन गो हेड विद इन 2 ways. एक तो आई हैव फाइंड आउट फ्रॉम द net sources as well, it is a crux story, but one I have got it from my book. In this which we will talk about, जब भी हम poverty reduction करने के लिए सोचते हैं, हम 3 तरह से poverty reduce करते हैं. अभी उनके अंडर हमारी policies और programs आएंगे, that I'll let you know how to do it. First is whenever we are talking about removal of poverty, that is to be done through the 3 way. First one is एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिगार्डिंग कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, तो ऑब्वियसली यू आर क्रिएटिंग इनकम. इनकम कम्स टू बी increase the standard of living, comes out with the poverty line. So पहला हमारा जो भी था, जो भी प्रोग्राम्स हैं वो कौन सी हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के प्रोग्राम्स. सेकेंड आते हैं हमारे प्रोग्राम्स रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स. Third is other programs. अब आप बोलेंगे इनमें से पॉवर्टी के रिडक्शन के तो कोई प्लान नहीं है ना, सब में कुछ और बात कर रहे हैं. बट अल्टीमेटली वी आर डिवाइडिंग द टोटल प्लान्स इनटू दीज 3-4 कैटेगरीज. इन अदर प्लान्स में भी हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है. देखो, या तो हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से क्या होगा, people will get more income and they will come out of the poverty line. Either you will give a assets, acquisition of some assets, acquisition of some facilities and resources. आपको फूड फॉर वर्क दे दिया, आपको 100 days का वर्क दे दिया, ये भी एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है. आपको दे दिया फूड, दे दिया वर्क नहीं दिया, फूड दिया, वर्क के थ्रू फूड अवेलेबल करा दिया, आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करवा दिया, आपके एरिया में ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की फैसिलिटी बना दी, MSMEs को डेवलप कर दिया, मार्केट में लो रेट पे इंटरेस्ट देने शुरू कर दिए. ये क्या है, ये डायरेक्टली नहीं है, ये इनडायरेक्ट है. तो हम जो पॉलिसीज को डिफाइन कर रहे हैं ना, एक हम कह रहे हैं
डायरेक्ट और एक हम कह रहे हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या है, डायरेक्टली दे वांट टू रिमूव द पॉवर्टी। इसमें क्या है, नॉट टू डायरेक्ट बट एम्प्लॉयमेंट देकर और क्या कर सकते हैं, फैसिलिटीज देकर, इंफ्रास्ट्रक्चर देकर, अदर एजुकेशन देकर, सैनिटेशन देकर, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाकर, ये सारे फैक्टर क्या है, इनडायरेक्ट है। ये जब मिलेंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट इट मोर इनकम, लो रेट पे इंटरेस्ट पे लोन देकर, एजुकेशन देकर। इसमें डायरेक्ट पॉवर्टी, सिर्फ पॉवर्टी हटानी, सीधा सीधा आपको फूड नहीं मिल रहा, हम 20 किलो चावल देंगे, आपको खाना नहीं मिल रहा, विल प्रोवाइड योर बीपीएल कार्ड। उसमें डायरेक्ट पॉवर्टी रिडक्शन के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। और इनडायरेक्ट पॉवर्टी क्या होती है, अगर पॉवर्टी नहीं हट पा रही है, हमारा एजेंडा लोगों के हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना है। 3 components of multidimensional poverty index. So that's the way we are going through with the policies and programs, direct and indirect. और डायरेक्ट में डायरेक्ट पॉलिसीज आएंगी, इनडायरेक्ट के अंदर ही तीनों आएंगे। ये इनडायरेक्ट के अंदर आएगा, डायरेक्ट में तो डायरेक्ट प्रोग्राम आएगा कि संपूर्ण रोजगार योजना, सीधा आपको क्या रोजगार दे दिया। रोजगार भी किस चीज का एम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी नहीं है ना। पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें डायरेक्ट पॉवर्टी हटाई जाती है। सो दीज आर द कैटेगरीज इन विच वी विल टॉक अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। एंड इनडायरेक्ट के अंदर हमारे 3 तरह की कैटेगरीज हैं। अभी देखिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, आई विल जस्ट गो थ्रू विद द फर्स्ट ऑफ ऑल इन 3 कैटेगरीज। फिर मैं आपको कुछ अनइम्पॉर्टेंट भी जो पॉलिसीज आई हुई हैं लेकिन हम उनको कई बार टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, बट पॉलिसी का नाम है, तो you should be knowing about the policy. I just give the crux to later on last half an hour में। अभी फिलहाल मैं आपको इन 3 कैटेगरीज का डिवाइड कर रही हूँ। तो पहले हमने कहा कि फर्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग टू द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसका मतलब गवर्नमेंट चाह रही थी कि we need to provide the employment opportunity to the people so that they can generate a more income and they can come out of the poverty। इसके थ्रू उन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। राइट डाउन द फर्स्ट वन इज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। या पहली आप लिखिए, नहीं आप ये मत लिखिए। राइट डाउन द फर्स्ट वन इज IRDP। दैट इज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये फर्स्ट वाले के अंडर आ रहा है। आप जब भी इन चीजों के नोट्स बनाएं तो इस तरह से बनाइएगा, एक तो प्रोग्राम का नेम, फिर उसका ईयर, फिर उसका अथॉरिटी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है वो, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के है, पंचायती राज के अंदर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, किसके अंडर वो आ रही है। सो गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री। And the last one is basically what we talk about, the objective or the targets of this policy. कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं तो उसको इस तरह से याद करके लिखेगा। एक तो उससे कंपैरेटिव एनालिसिस आसान हो जाता है, आप सिर्फ ईयर्स देखते हो और आपको पता चल जाता है कब की पॉलिसी है, किसने बनाई थी। So we started with the IRDP, Integrated Rural Development Program. It was started in 1978. ये कौन से ईयर की पार्ट है? Isn't we are talking about the just starting of 5th 5-year plan? So that was the, देखो कोई भी पॉलिसी प्रोग्राम प्लान में आने से पहले अपना ड्राफ्ट तैयार कर लेती है। तो दैट वाज स्टार्टेड विद 1978 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। किसने स्टार्ट किया था? Ministry of Rural Development. And what was the objectives of this plan? It was to identify the target groups living below poverty line and sustain the opportunity of self-employment जनरेशन। पहला तो उनको आइडेंटिफाई करो जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, फिर उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करो।
जो बीपीएल से नीचे हैं पहले उनको आइडेंटिफाई करो एंड उनको फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए कोई फाइनेंशियल हेल्प करो. सो दैट वाज द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम विद द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम. यहीं से आपको पता चल गया कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको बना रही है ना. रूरल डेवलपमेंट ही करे थे, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम उसको बना रहा है. देन द सिक्स्थ प्लान वाज नथिंग अबाउट एनी टारगेट और पॉलिसी. इसके बाद हम आए हैं जी, बहुत सारी पॉलिसीज हैं बट आई वांटेड टू बी कम अप विद द ईयर वाइज ताकि आपको याद करना आसान रहे. या नाउ यू कैन कम अप विद द नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY. प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY दैट वाज इन 1993. इससे पहले भी हैं 2-3 पॉलिसीज जो मैं आपको बाद में बताती हूँ. प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है. इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू 1 million educated jobless youngsters. Write down this line. I'll write down and it will be more. To self-employed, to self-employment. Take it a one point is to self-employment. Second is to 1 million educated jobless youngsters. 1 million educated jobless youngsters in rural and small towns. So ultimately in that area where the rural area and the small towns are there, we want to create a jobless people को employment generation कराना. So that jobless people, those are educated, not the rural development. Rural development हमने पहले कर लिया, which were the illiterate or semi-illiterate. But in that we were talking about the employment generation to the people, those are somewhere somehow educated but they are jobless. तो जॉबलेस लोगों को इनकम जनरेट कराने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया. एंड टारगेट वाज टू 1 million people should be targeted. And for that they established 7 lakh micro firms. छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी फर्म बनाई गई जिसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बुलाया गया. 7 lakh micro firms were being established so that people can get the jobs. And obviously we are talking about firms, तो वो इनकम जनरेशन में पढ़े लिखे लोगों के लिए था. Done? ये आपकी आ जाएगी उसके अंदर, हाउसिंग में आ जाएगी, पेंशन उसमें आ जाएगी, फैमिली बेनिफिट उसमें आएगी, जो हम ग्राम समृद्धि योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें आएगा. अभी आपने प्रधानमंत्री लिखा ना, अभी लिखिए रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम. रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, REGP, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम. इट वाज इन 1995. 95. Rural Employment Guarantee Program, that was in 1995, 1st April 1995, and it was under the Government of India. Government of India started it. What was the basic objectives under this? पहला, creation long-term stable jobs. Long-term creation of long-term stable jobs. Providing, we can say, the flow of credit, to provide a flow of credit to micro scale. मेन ऑब्जेक्टिव देखिए ये था कि आप क्रेडिट अवेलेबिलिटी कराएं और जिससे जॉब क्रिएट हो सके, फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी हो, अपनी फर्म्स लोग जनरेट कर सके. नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोग्राम विच इज टू बी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना.
इट वॉज इन 1999। मैं ईयर वाइज ही बता रही हूँ ताकि आपको इजी रहे याद करना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, देखो उसका नाम ही बता रहा है, 2 पॉइंट तो इसके नाम ने बता दिए, एक तो ग्राम रूरल एरिया में है, एक स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेके है। सो अल्टीमेटली इट्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, पहली बात तो इसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था। दूसरी बात इट इज टू जनरेट इनकम and it was with the cost split of 75-25, cost split of 75:25, 75:25, and 75 stands for central and this is for the state. Cost split of 75-25 ratio, 75% जो दे रही थी वो सेंट्रल दे रही थी उस फाइनेंस करने के लिए इस पॉलिसी को, 25% जो था वो स्टेट दे रहा था। तो 100% इनकम जनरेट करके हम पॉवर्टी रिडक्शन करना चाहते थे बाय जनरेटिंग अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। 1999 और बेसिकली ये विलेजेस में था, क्योंकि रूरल लिखा है ना, ग्राम रोजगार योजना है, तो ये रूरल एरियाज में था, सिंपली विलेजेस में था। ये हमारी सेल्फ मिनिस्ट्री ऑफ उसके अभी मैं 2 नाम और बताऊंगी उसके अंडर आएगा। दैट वाज अंडर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स एज अ कलेक्टिव बेसिस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तीसरा पॉइंट क्या लिखिए, एक तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू चलाई गई थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू चलाई गई थी, मतलब लोगों को या तो सेल्फ सस्टेन बनाने के लिए कहा जाता था कि आप पैसा लीजिए और अपनी अपनी इंडस्ट्रीज और बिजनेस चलाइए, और अगर नहीं चला सकते तो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लो। व्हाट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप? बाय द पीपल फॉर द पीपल, कि हम 5 लोग मिल गए, हम अपना ही पैसा लगाते हैं और अपना ही बिजनेस बढ़ाते हैं। वी आर हेल्पिंग ईच अदर, सेल्फ हेल्प, अपना हेल्प अपने आप से करने का। एनजीओ somehow it is creating a welfare for the other people. It is the participants are someone else and the beneficiaries are someone else. लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप में हम खुद ही पार्टिसिपेंट होते हैं और हम खुद ही बेनिफिशियर होते हैं, तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी मोटिवेट करता है। सपोर्ट ले सकते हैं अगर एनजीओ को लेना चाहिए। कौन? सेल्फ हेल्प ग्रुप। हाँ ले सकते, बिकॉज एनजीओस का भी बेनिफिट होता है उसमें। एनजीओस गेट रिबेट्स इफ दे आर हेल्पिंग सम दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स, तो वो उनको गवर्नमेंट फिर सब्सिडी देती है, तो वो फिर लेते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया, ग्रांट्स लोन्स दिए गए, सस्ते में दिए गए। नाउ इसी में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोल्ड करके लिखेगा, इन 2011 and 12 scheme was restructured, NRLM, कैपिटल्स में लिखिए NRLM मीन्स रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में इसको कन्वर्ट कर दिया। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को उसको रिस्ट्रक्चर करके नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का नाम दिया गया। इसी को आजीविका प्रोग्राम भी बोलते हैं, आजीविका प्रोग्राम। और आज मतलब एट प्रेजेंट ये वाला आजीविका प्रोग्राम दीनदयाल अंत्योदय योजना में कन्वर्ट हो गया है। तो आपको अब ये, चलो आप लिख लीजिए पहले, नाउ NRLM हैज बीन मर्ज्ड इन दीनदयाल अंत्योदय ANTYODAY अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, अभी वो उसमें मर्ज हो गए। अब देखो इसमें से आपके 2 क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं। एक तो वो पहला सिर्फ प्रोग्राम क्या था, है ना, आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना क्या था, फिर वो किसके अंदर पहला शिफ्ट हुआ, ठीक है, देन उसका मर्जर होके सेकंड नाम, उसका ऑल्टरनेटिव नाम क्या था, है ना, ऑल्टरनेटिव नाम के बाद अभी जो प्रेजेंट में है उसका नाम क्या बन गया, किस में मर्ज हुए। तो समवेयर समहाउ हमें पॉलिसीज प्रोग्राम्स लर्न करना थोड़ा मोनोटोनस, थोड़ा बोरिंग लगता है, बट समवेयर समहाउ दे आर द getting the point. So can you answer
पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स का क्या चेंज हुआ इसमें? सबसे पहले क्या था? स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। ग्रामीण और स्वरोजगार को नहीं भूलना, गांव के अंदर सेल्फ अपना एम्प्लॉयमेंट करना है। दैट वाज स्टार्टेड इन 1999। फिर इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू अपनी इनकम को जनरेट करें, छोटी छोटी फर्म्स बनाएं और हाँ, गवर्नमेंट ग्रांट्स द लोन्स फॉर दिस टू द शॉर्ट फॉर्म स्मॉल फर्म्स। जनरेशन के लिए 4 चीजें हुई। फिर ये शिफ्ट होकर किस में गया? NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसका अल्टरनेटिव नाम क्या था? आजीविका। वो 2011-12 में आया और आज उसका नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। तो ये हमारा कन्वर्जन ऑफ पॉलिसीज का 1999 से चली हुई प्रोग्राम, नाम बदल बदल के आज उसका नाम कुछ और है। डन। नेक्स्ट है आपका, नहीं फूड को वर्क नहीं करते, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज नहीं लेंगे हम। हाँ जी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। वो ग्रामीण था ना, ये शहरी, दोनों साथ साथ करते हैं तो आपको याद रहेगा। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। अगेन ये कहां पे था? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बट इनटू द अर्बन एम्प्लॉयमेंट। इन इसका एक बार ईयर मुझे चेक करना पड़ेगा बिकॉज दे हैवंट मेंशन इट, क्योंकि ये भी बाद में दीनदयाल उपाध्याय में मिक्स हो गई है। ठीक है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द अर्बन एरिया, वो रूरल एरिया में थी, ये अर्बन एरिया में है। इसमें 2 प्रोग्राम चलाए गए। पहला अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम USEP, अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, उसी का हिंदी है ना, उसका इंग्लिश बना दिया है। अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, और दूसरा इसका नाम है अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्बन एरिया में जॉब्स को क्रिएट करना। अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 2013 में, सितंबर 2013, शहरी स्वरोजगार योजना बीइंग रिप्लेस्ड बाय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। सेम प्रोसेस चल रहा है, देखो वो क्या बना था? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसका नाम क्या बना? नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। Are you getting it? In 2013, वो 11-12 में हुआ था, ये 13 में हुआ है। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, सेम वही वाला। वो रूरल का अर्बन तो अर्बन मिशन हो गया, ये अर्बन एयर का हो गया। नाउ दिस स्कीम हैज बीन नेम्ड ऑफ, आज क्या बन गया इसका? दीनदयाल उपाध्याय। ये दीनदयाल उपाध्याय में ये भी मिक्स हो चुकी है। डन। तो ये अर्बन पुअर के लिए था कि अर्बन सेक्टर्स में जो पुअर लोग हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे दें। दीनदयाल उपाध्याय नहीं, दीनदयाल ही सिर्फ, दीनदयाल अंत्योदय योजना है ना, वही योजना में मिक्स हो गए। द नेक्स्ट इज नरेगा। पहले नरेगा थी, फिर मनरेगा होगी। नरेगा NREGA and later on name shifted to Manrega, MGNREGA, MGNREGA. That is in 2005, 2005 में आई सबसे पहले नरेगा। 2007 में उसको 200 डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट किया। उसके बाद जब उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो गए, फिर उन्होंने उसको 600 डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट कर दिया। तो जो पहला स्टार्ट था 2005 में तो बनी, 6-7 में उन्होंने 200 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको इम्प्लीमेंट किया, एंड लेटर ऑन दे एक्सटेंडेड दैट टू द 600 डिस्ट्रिक्ट्स। व्हाट वर अंडर दैट? 100 days guarantee employment will be provided in a 1 year to the all unemployed people. And if you registered yourself into this program and you do not get job within the 15 days,
गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यू द अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पनसेशन, आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट गवर्नमेंट देना शुरू कर देगी। विमेन का 33% रिजर्वेशन था इस पॉलिसी के अंदर कि विमेन कम्स एक जो अगर 100 दिन का काम मिल रहा है पूरी फैमिली में से, तो फीमेल का 3300 लोग रखेंगे तो 33 फीमेल होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी है, एक मैंने देखा है जिसमें आपको कि ये क्या पंचायती राज के अंदर आता है, पंचायती राज के अंदर आ रहा है, रूरल एरिया में स्टार्ट हुआ है ना। सेकंड, विमेन कंट्रीब्यूशन 33% है, यस। क्या 100 डेज की गारंटी जॉब देते हैं, हाँ जी। एक पॉइंट ऐसा था जिसमें उन्होंने नॉट लिखा था एंड दैट वाज एन सर्कल्ड वन कि वो गलत वाला पॉइंट था। सो मस्ट बी नोइंग द 4-5 पॉइंट्स। 2005 में स्टार्ट हुआ, फुल फॉर्म एमजी नरेगा है, पहले 200 डिस्ट्रिक्ट में, फिर 600 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ। 100 डेज का गारंटी जॉब मिलेगा आपको। अगर 15 डेज आप रजिस्टर हुए हो गए और आपको जॉब नहीं मिला, देन आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। डन। इसके अलावा in the scheme 7.56 households provided job in 2021। ये तो खैर डेटा है, इसको नहीं भी करेंगे तो तब भी चल जाएगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो भी रूरल एरिया में होगी ना वो सारी रूरल मिनिस्ट्रीज के अंडर होगी, रूरल डेवलपमेंट के अंदर होगी, ठीक है जी। इसके अंदर एक आप और से लिख सकते हैं, State government will establish a state employment guarantee fund for implementation of the scheme. Under this program, if an applicant is not providing, हाँ मतलब स्टेट चला रही ना पहले डिस्ट्रिक्ट्स के अकॉर्डिंग, तो स्टेट अपना एक गारंटी फंड क्रिएट करके रखती है कि उसमें से वो पैसा देंगी। जैसे हमने कहा था ना इतने % से चला रही है, तो 7 यहाँ पे कोई रेशो नहीं दिया हुआ, बट ये जरूर बताया कि स्टेट गवर्नमेंट को अपना एक गारंटी फंड क्रिएट करके रखना है जिसमें से उन्होंने इनको लोगों को पैसा देना है कि अगर जब स्टेट अपना बजट बनाती है तो पहले ही वो मनरेगा के लिए अपना इतना फंड क्रिएट करके रख लेती है ना। तो दैट इज अनदर गुड पॉइंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ मनरेगा। डन। अभी आप आइए प्रोग्राम्स रिलेटेड टू द सेकंड वन आई टॉक्ड अबाउट, एक्विजिशंस ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स। अभी बहुत सारी हैं वैसे, बट लेट मी कंप्लीट। इट इज इन 2006-7 जब वो इम्प्लीमेंट हुआ ना डिस्ट्रिक्ट्स में, देन ठीक है। बाकी सारी हमारी वैसी हैं जो हमारी एम्प्लॉयमेंट से, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड नहीं है, जो एसेट्स क्रिएशन वाली है। पहली आपकी लिखिए एसेट्स क्रिएशन में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, GRAMODY, ग्रामोदय योजना। इट वॉज इन 2001। ग्राम की है तो ऑब्वियसली रूरल मिनिस्ट्रीज के अंडर आएगी। कंसेशनल लोन्स दिए जा रहे थे विलेजर्स को ताकि वो मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल्स खरीद सकें और अपनी कोई भी नई प्रोडक्टिव एसेट खरीद सकें जिससे वो बिजनेस चला सकें। इट वाज कंसेशनल लोन्स प्रोवाइडेड टू द विलेजर्स फॉर परचेजिंग मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल एंड अदर प्रोडक्टिव एसेट्स, क्योंकि हम एसेट्स के अंदर कर रहे हैं ना, मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल्स एंड अदर प्रोडक्टिव एसेट्स। कुछ भी प्रोडक्टिव एसेट्स खरीदने के लिए गवर्नमेंट कंसेशनल लोन्स देना शुरू किया है। इट इज 2001। ओल्ड एज पेंशन की नहीं। Next is, that is not like a program, but they have given the name is like concessional loans to start and small scale industries। रहने दीजिए इसको। Differential rate of interest scheme, ये लिख लीजिए, differential rate of interest scheme। Interest, rate of interest scheme। That was in 1972। % रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को लोन देने लग गए गवर्नमेंट, ताकि अंडर दिस स्कीम
and it was started in 1972, launched in 1972, and under this 4% was a concessional rate of interest for poor people. इस स्कीम के अंदर सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एटलीस्ट 2/3 अमाउंट ऑफ लोन इज एडवांस टू द रूरल पुअर। थी तो वो सबके लिए, लेकिन रूरल पुअर को उसका 2/3 पार्ट रूरल को मिलना चाहिए। मतलब लोन्स गवर्नमेंट ने बांटने शुरू किए 4% पे, बट 2/3, एटलीस्ट 2/3 अमाउंट ऑफ द लोन्स is advanced in the rural poor, not to the urban. तो इनमें मेन ऑब्जेक्टिव वही, जब भी आपको लोन दिया जा रहा है तो उसका मतलब क्या कह रहे हैं वो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपने आप बनाओ, कुछ भी प्रोड्यूस करो। तो इन दोनों में भी हम एसेट्स क्रिएट करने के लिए आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर डायरेक्टली आपकी ग्राम उदय योजना कर रहे हैं। नाउ अदर प्रोग्राम्स, थर्ड प्रोग्राम्स, इसमें हमारे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स आते हैं क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं कर रही है, इनडायरेक्ट आपके बेनिफिट्स दे रही है। इनडायरेक्ट बेनिफिट्स में आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। इसमें दो पॉइंट्स हैं इसके सबके। ग्रामीण आवास योजना दैट इज इन 1985, ग्रामीण आवास योजना 1985 फिर से रूरल डेवलपमेंट के अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ही आएगा क्योंकि रूरल एरिया में है। इनमें लोगों को मेन ऑब्जेक्टिव था कि 13 लाख हाउसिंग यूनिट्स प्रोवाइड की जाए, लोगों को घर प्रोवाइड किया जाए, टू प्रोवाइड 13 लाख हाउसिंग इनटू द रूरल एरिया। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सब्सिडाइज रेट पे लोन दिया जाए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसका था जी 1985, आवास योजना 1985। नेक्स्ट इज इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। ये आई थी 1995 में, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर है। जो भी इंडिया में 65 ईयर से ऊपर है और वो बिलो पॉवर्टी लाइन के है, उसको 200 रुपीज गवर्नमेंट पेंशन देगी। 1995 में 200 रुपए दी थी, अब बढ़ा दी है। एंड जो 80 ईयर से ज्यादा है उसको 500 रुपीज पेंशन देगी। तो मतलब ओल्ड एज पीपल को जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उनको सस्टेन कराने के लिए 200 and 500 rupees according to their age structure, the government provides the financial stability, that is to the pension schemes. इसी के साथ जो हमारी प्रोग्राम आया that was National Family Benefit Scheme, National Family Benefit Scheme, ये भी 1995 में आई। नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर ही है। नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम दैट इज इन 1995 मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर है। इसमें क्या किया, 20,000 टू द बेनिफिशियर हु विल बी द नेक्स्ट हेड ऑफ द फैमिली आफ्टर डेथ ऑफ द प्राइमरी बेनिफिशियर। अगर गवर्नमेंट ने जो प्राइमरी बेनिफिशियर्स थे जिनको फैसिलिटी दे रखी थी, अगर उसकी डेथ हो जाती है प्राइमरी बेनिफिशियर की, तो उसके नेक्स्ट जो पर्सन आएगा उसको 20,000 रुपए की इनकम जनरेट करने के लिए वन लंप सम मनी देनी शुरू कर दी ताकि फैमिली को सस्टेन करा सके, लाइक बीमा काइंड ऑफ थिंग्स। तो गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग 20,000 रुपीज ऑफ बेनिफिट टू द नेक्स्ट बेनिफिशियरी ऑफ द हु विल गोना हेड ऑफ द फैमिली। यस, जौहर ग्राम समृद्धि योजना, JGSY, जौहर ग्राम समृद्धि योजना। Under this program, that was in again 1995, समृद्धि योजना, ये हमारा अंडर द चेयरमैनशिप था, implemented by the village panchayats, implemented by the village panchayats।
इसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की है, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरिया, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरिया, चाहे वो कनेक्टिंग रोड्स थी, स्कूल्स थे, हॉस्पिटल्स थे, और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट की गई रूरल एरिया में, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, स्कूल्स, हॉस्पिटल एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और अदर थिंग्स इसमें प्रोवाइड किए गए। ये वाली थी जी हमारी 1995, 3-4 पॉलिसीज इकट्ठी 1995 की है। अन्नपूर्णा, that Annapurna was 1999-2000, Annapurna, ANNAPURNA, Ministry of Rural Development, same चलेगा, to provide 10 kg free food grains to eligible senior citizen। अच्छा, ये देखो, ये उसी स्कीम का थोड़ा सा फर्दर पार्ट था। उन्होंने कहा जो लोग ओल्ड एज पेंशन को एक्सेप्ट नहीं ले रहे हैं, नहीं मिल पा रही, उनको 10 kg ऑफ फूड ग्रेन्स अवेल कराई जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। सो इट प्रोवाइडेड 10 kg ऑफ फूड ग्रेन्स टू एलिजिबल सीनियर सिटीजन्स who are not registered, senior citizens who are not registered under the old age pension scheme। जिनको ओल्ड एज पेंशन नहीं थी ना पुरानी वाली स्कीम में, उनको 10 किलो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट। नॉट रजिस्टर्ड अंडर द स्कीम ऑफ नेशनल ओल्ड एज पेंशन, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के अंडर जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है, उनको 10 kg फूड ग्रेन्स अवेल कराने के लिए कहा जाएगा। Done? Next is Food for Work program. That was very important scheme. Food for Work program. Food for Work program 2000 में आया था जी, year 2000। इसको 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट किया गया। That program was started in 150 most backward districts. Most backward districts of nation, and इसमें हम लोग जो wages थे वो food के form में देते थे। We provide wages are distributed in the form of food grains. Wages are distributed in the form of food grains. खाने की चीज देते थे, खाने काम कराने की बजाय, पैसे देने की बजाय। This enhance employment avenues and promote food security. It enhance employment avenues and promote food security. एक तो फूड भी हमारा सिक्योर हो जाएगा, उनको मिल जाएगा, दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी हो जाएगी, उनसे काम भी करवा लेंगे और उनको फूड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये बेसिकली रूरल एरिया के लिए ही था, नॉट फॉर द अर्बन एरिया। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो था वो रूरल एरिया के लिए था। ठीक है जी, महात्मा गांधी हमने कर लिया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हमने कर लिया, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन हमने कर लिया। अभी आ जाओ, अब आ गए हम अभी के ईयर्स के पास। जहाँ पे आपने वो लिखी ना इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, उसी के साथ लिख लीजिए अटल पेंशन योजना। ये थोड़ी नई है लेकिन वो दोनों याद रहेंगी, दोनों पेंशन की बातें कर रहे हैं। ठीक है, 2015-16 में आई है अटल पेंशन योजना। It was in 2015 and 16. Any person aged between 18 to 40 years can join this scheme. 60 plus नहीं होने की जरूरत है, 18 से 40 years can join this scheme.
गारंटी मिनिमम मंथली पेंशन ऑफ सब्सक्राइबर रेंजिंग बिटवीन 1000 to 5000 पर मंथ। ये अभी की है ना, रिसेंट है, तो वो 5000 रुपए दे रहे हैं। सो दे आर प्रोवाइडिंग यू मोर देन द मनी, दैट इज 1000 to 5000 रुपीज। बट अर्लियर पेंशन स्कीम वाज ओनली टू द 200 to 400 रुपीज। गेटिंग इट इज कंपैरेटिवली मोर फाइनेंशियली बेनिफिटिंग हमारी जो प्रोग्राम्स थे। Okay, write down. It was started in 2010, 15, 16, 18 से 40 इयर्स का कोई भी इंसान इस प्रोग्राम को इनिशिएट कर सकता है। मिनिमम मंथली सब्सक्रिप्शन जो करता है और उसको रुपीस मिलेंगे 1000 से 5000 पर मंथ, डिपेंडिंग अपॉन द मंथली वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। ये बस फ्री में नहीं मिलेगी, आपको अपना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। पेंशन स्कीम का मतलब जो लोग वर्किंग लोग हैं 18 से 40 इयर्स में, they will put their contribution from 1000 to 5000 rupee and the later on stage they will get a pension out of it। तो वो अपना ही पैसा सेव कर रहे हैं और उसके बाद में उससे पैसा ले सकते हैं। तो मिनिमम जो उसको सब्सक्राइब करते हैं कि जो उस पॉलिसी को लेना चाहते हैं वो लोगों को वो पॉलिसी मिलेगी। 1000 से 5000 रुपीज आप पर मंथ अपना सेव कर सकते हो। डन। वो बहुत ही रिसेंट है, मुझे लगता है 15 के बाद की है ना। The subscriber will receive a pension after the age of 60। लेकिन वो पेंशन कब मिलेगी? 60 के बाद मिलेगी। आप 40 तक अपना yes कर सकते हो, जॉब चाहे आप 60 तक करो, तो 40 तक आपके पास ऑप्शन है। आप जब भी जॉब ज्वाइन करते हो, 30 में करते हो, 32 में करते हो, 40 इयर्स तक आप उस पेंशन को अटेन कर सकते हो और 60 इयर्स के बाद आपको वो पेंशन मिलेगी, अटल पेंशन योजना। तो समवेयर समहाउ ये भी कहीं ना कहीं लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पॉवर्टी को हटाने के लिए ही है। सेफ भी करते हैं जो पैसे करेंगे, वो सेफ भी करते हैं। जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से है, सेंट्रल एंड स्टेट की तरफ से है। जैसे हम लोग पीपीएफ काटते हैं, पीएफ कटवाते हैं, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो स्कीम सेंटर करेगी कि सबको स्टेट गवर्नमेंट को ये स्कीम चलानी पड़ेगी। तो वॉलंटरली है, आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं, आपकी नहीं मर्जी तो आप नहीं ले सकते। मतलब आपका एम्प्लॉयर जो है वो आप पे फोर्स नहीं कर सकता। यू कैन ऑपरेट बाय योर ओन चॉइस। अभी आए मिनिमम नीड प्रोग्राम। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, इसका ईयर इज नॉट गिवन। चलिए, मिनिमम नीड प्रोग्राम, इट इज टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मिनिमम नीड्स क्या है आपकी? एजुकेशन, हेल्थ, फूड, शेल्टर, या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल वाटर सप्लाई, सैनिटेशन। तो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, चाहे एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, रोड, रूरल ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। दैट इज टू बी इकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द स्लम एरिया एज वेल। अर्बन स्लम को ठीक करने के लिए ये बड़ी अलग सी पॉलिसी है। इट इज जस्ट टू रूरल हाउसिंग एंड इकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट ऑफ अर्बन स्लम, क्योंकि वहां पर भी चाहे आप अर्बन एरिया में रह रहे हैं, लेकिन आपकी बेसिक नीड्स वही होनी चाहिए जो आप एक रूरल और अर्बन लोगों को दे रहे हो। मीन्स टू से इफ यू आर स्टेइंग इनटू द अर्बन स्लम, you should get the same facility, housing, health, education, rural electrification जो उनको मिल रही है वो आप, क्योंकि आप इकोलॉजिकल बैलेंस खराब कर रहे हो अर्बन एरिया में आके, तो दैट शुड बी गिवन टू यू सो दैट यू कैन कम आउट विद एन बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट, आप बिलो पॉवर्टी से ऊपर उठ सको। देन इसी के साथ की थी 20 पॉइंट्स प्रोग्राम, 20 सूत्रीय प्रोग्राम भी बोलते हैं इसको, हिंदी में भी इसका नाम कई बार याद आता है। 20 पॉइंट्स प्रोग्राम, 20 सूत्रीय प्रोग्राम, इसका ऐसे कुछ है नाम। It was in 1982, 20 points program, 20 सूत्रीय प्रोग्राम। ये 1992 में 82 में स्टार्ट हुआ था लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए। इसमें 20 पॉइंट्स रखे गए। क्या? मिनिमम फिक्स वेज ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स, एक तो वर्कर्स की मिनिमम वेज डिसाइड कर दो सो दैट उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है उससे अपर लेवल की मिल पाए। मिनिमम फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर। सेकंड, प्रोविजन ऑफ हाउसेज इन रूरल एरिया, प्रोविजन ऑफ हाउसेज इन रूरल एरिया, एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS, एक्सपेंशन ऑफ रूरल एरियाज, एंड थर्ड वन इज
expansion of PDS, public distribution system, rehabilitation of bonded laborers. Rehabilitation of bonded laborers. डन। अब ये दोनों देखो, मैं ट्राई कर रही हूँ कि साथ साथ जो सेम सी प्रोग्राम्स की पॉलिसी है वो इकट्ठी आ जाए, जो साल इकट्ठे आए हैं वो इकट्ठे आ जाए, ताकि आपको याद करने में थोड़ा आसान रहे। दो हमारी पेंशन वाली पॉलिसीज हो गई, एक जो पुअर के लिए है, ओल्ड एज के लिए, एक जो हमारे अर्बन लोगों के लिए। 20 सूत्रीय प्रोग्राम एंड हमारा जो नीड मिनिमम नीड प्रोग्राम है वो दोनों एक जैसी सी बात करते हैं। 1995 में वो स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, दोनों 1995 में आई। दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव सेम था, दोनों शिफ्ट सेम हुई, दोनों का मेन एंड सेम है। तो थोड़ी थोड़ी प्रोग्राम्स आपको याद हो जाएंगी। नेक्स्ट इज अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना, ANTYODAY अन्न योजना। अन्न योजना हिंदी में लिख लो, अंत्योदय अन्न योजना, ANNA अन्न योजना। अन्न योजना इसमें बेसिकली 2 रुपीज kg वीट और 3 रुपीज kg राइस सब्सिडाइज रेट पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी poorest टू द पुअर फैमिली को। 2 rupees of wheat and 3 rupees of rice will be provided to the poorest families। और इस स्कीम के अंडर आप 35 kg पर फैमिली पर मंथ ले सकते हैं। 35 kg पर मंथ पर फैमिली आप ले सकते हैं डिस्ट्रिक्ट पीडीएस के अंडर, राशन कार्ड के अंडर। That was started in, इसका कोई ईयर नहीं मेंशन्ड है, I'll just check it out and let you know। अभी इसका स्पेस छोड़ दीजिए, ठीक है। इसी के साथ वाली हमारी अभी इसमें क्या मेन ऑब्जेक्टिव क्या कर रहे हैं कि पीडीएस सिस्टम के अंदर आपको सस्ती चीज मिलेगी। अब पीडीएस के अंदर ये एक और स्कीम आ गई हमारी, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, TPDS, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसका भी ईयर मेंशन नहीं है। जो फैमिलीज अंत्योदय अन्न योजना के अंदर टारगेटेड नहीं हुई वो इस स्कीम के अंदर आएंगी, ठीक है। इन दिस स्कीम 35 kg फूड ग्रेन्स पर मंथ पर फैमिली सप्लाई टू द पीपल, लेकिन रेट बदल गया। यहाँ भी 35 किलो ही मिलेगा एक मंथ का एक फैमिली को, लेकिन वहां 2 रुपए और 3 रुपए था, यहाँ पे 4.15 वीट का प्राइस है पर केजी, 4.15 रुपीज पर केजी ऑफ वीट एंड 5.65 ऑफ राइस। I believe that must be difference in the years of the policies. That's 5.65 राइस है 5.65 का और वीट है 4.15 पर केजी। So you must check, I will check as well the years. You can see there is as inflation is coming up, there must be rate of change in the wheat and rice prices as been there. क्योंकि टारगेट भी सेम किया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर है, 35 ही केजी रखा है पर फैमिली मेंबर का, बट रेट बदल दिया। अब हम बिल्कुल रिसेंट्स पे आ रहे हैं, जो 2-3 हमारी मेन अभी की हैं। अर्बन लाइवलीहुड कर लिया हमने। नेशनल मीन्स कम क्रेडिट स्कॉलरशिप। अब एक तो स्कॉलरशिप एजुकेशन के ऊपर आते हैं। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, इसका ईयर नहीं है इसीलिए मैं बुक से नहीं जाना चाह रही। नेशनल मीन कम मेरिट स्कॉलरशिप 1 लाख स्कॉलरशिप अवार्ड की, जिसमें आपको 6,000 पर एनम, 6,000 रुपए पर मंथ पर एनम पर ईयर 9th to 12th क्लास के स्टूडेंट्स को दिया जाएगा पढ़ने के लिए। 9 to 12th स्टडिंग 9 to 12th क्लास 6,000 per annum will be given by the government। Intelligent poor students के लिए था ये। This is for the intelligent poor students। Done।
अभी हमारी हेल्थ की कोई नहीं हुई ना? हाँ, सुरक्षा बीमा योजना, ज्योति बीमा योजना, आदर्श ग्राम योजना, कौशल विकास योजना। अब आ जाओ थोड़ा फाइनेंशियली। प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो हमारे जैसे आजकल डिपो बने हुए हैं, जैसे किसी को फीड्स वगैरह मिलती है, तो वो पूरा 10 kg का मिलता है, वो इसी स्कीम के अंदर मिलते हैं, जैसे TPDS वगैरह। वो TPDS के अंडर नहीं मिलता, वो हमें डिपेंड अपॉन द राशन कार्ड मिलता है कि आपको कौन सा राशन कार्ड है, तो उसके अंडर आप दूसरी पॉलिसीज के अंदर आ जाते हैं। कितने तरह के राशन कार्ड होते हैं? कौन कौन से? अब पॉवर्टी लाइन को क्या मिलता है? अब पॉवर्टी लाइन को कैसे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਏਜੀਐਮ। अब पॉवर्टी लाइन को कुछ मिलेगा नहीं, राशन कार्ड तो आपकी मतलब जनरल पे बाकी सारे राशन कार्ड तो आपकी आइडेंटिटी है ना, मतलब फैमिली का आपका डेटा है, बट यू विल नॉट गेट एनीथिंग बिना अबव राशन कार्ड। और बिलो पॉवर्टी लाइन को ही राशन कार्ड अलाउड है, एंड बिलो पॉवर्टी को भी इसी जो चार्ट बनाया ना प्लानिंग का, साथ में नेक्स्ट हम लिख लिए टाइप्स ऑफ राशन कार्ड्स, ब्लू, येलो, पिंक, बहुत सारे कलर्स के राशन कार्ड्स हैं, चेक आउट। हमारे पास तो वाइट ही होगा, आई थिंक इट्स अ ग्रीन काइंड ऑफ, वी कैन से इट्स ग्रीन, आई बिलीव, आई डोंट नो बेसिकली। राशन कार्ड्स के टाइप्स देख के आएंगे आप, दैट कुड बी अ क्वेश्चन फ्रॉम द समहाउ इनटू द पॉवर्टी ओनली। ओके, कितने कितने तरह के राशन कार्ड होते हैं और किस राशन कार्ड पे, वो भी देखो, वो बिलो पॉवर्टी, एक्यूट बिलो पॉवर्टी वाला, वो ऐसे दिया जाता है कि जो बहुत ज़्यादा वाले गरीब हैं उनको वो वाला ज़्यादा राशन दिया जाएगा, उनको ज़्यादा चीज़ें भी दी जाएंगी। जो अबव हैं और जो बिल्कुल अबव हैं, जिनके पास गैस सिलेंडर, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। कैरोसिन ऑयल्स उन्हीं को मिलेंगे जो बिलो पॉवर्टी लाइन पे। सो ऑन द बिहाफ ऑफ द कार्ड्स, द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड कमोडिटी विल बी गिवन टू यू, ठीक है। अभी हमारी कुछ 2-3 पॉलिसीज रहती हैं, डोंट गेट पैनिक, I know it's a bit of very monotonous classes there today because you are just writing and just cramming in later on stage, but it is required क्योंकि आप बाद में इतनी सारी पॉलिसीज ढूंढेंगे, डिस्कस करेंगे, उसमें से क्रम्स ढूंढेंगे, it would be difficult for you. So it's a day only that we are just going through with the topic. I usually don't feel like to go for this type of class. I feel like to write down and talk to you people, but it is a part of the topic that I have to go for it. Okay, just 2, 3, 4, 5 policies are left out. Please keep patience and just go for it. Next is the प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये तो आपको पता है क्या होती है? अच्छा, ये क्या रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है इसको। 2014 इज द ईयर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है ये। हाँ, वो तो ऑब्वियसली उसके अंडर आएगी ना, इम्प्लीमेंटेशन तो वही करेगा, फाइनेंस तो उसको जनरेट करेगा। एम टू डायरेक्ट बेनिफिट टू ट्रांसफर द सब्सिडीज, पेंशन एंड इंश्योरेंस। जनधन योजना क्या कहता है? 3 चीजें देगा आपको, सब्सिडी, पेंशन एंड इंश्योरेंस थ्रू द टारगेटेड of opening 1.5 crore bank account. It's a direct benefit transfer for subsidy, pension and insurance. अगर गवर्नमेंट ने आपसे कोई सब्सिडी देना है, गवर्नमेंट ने आपको कोई पेंशन का बेनिफिट देना है, गवर्नमेंट ने कोई इंश्योरेंस का बेनिफिट, जैसे जिन लोगों को वो मिल रहा है, अभी हम उसकी बात करेंगे, डायरेक्ट बेनिफिट्स मिल रहे हैं थ्रू द हेल्थ की कौन सी पॉलिसी है? आयुष्मान। आपको कहाँ से मिलेगा पैसा? दैट विल कमिंग फ्रॉम द बैंक अकाउंट्स ओनली ना। तो जनधन योजना वाज द प्री डिटरमाइंड टू क्रिएट अ इंफ्रास्ट्रक्चर कि लोगों के पास पहले इन बैंक अकाउंट तो हो ना, फिर हम कोई सब्सिडी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जनधन योजना वाज द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन टू क्रिएट अ सब्सिडिकल बेनिफिट्स टू यू पीपल। सिलेंडर के बेनिफिशियरी उसके बाद में मिलने शुरू हुए। तो दैट इज द 3 थिंग्स, सब्सिडीज, इंश्योरेंस एंड सम काइंड ऑफ इफ योर बेनिफिट्स हैविंग देयर, पेंशन वगैरह कोई है तो गवर्नमेंट वहां पे प्रोवाइड करती है। एंड 1.5 करोड़ बैंक अकाउंट्स टू बी टारगेटेड, 1.5 crore bank accounts to be targeted under this.
बैंकिंग फैसिलिटीज को बढ़ाना, लाइक एन अकाउंट होल्डर विल रिसीव रुपए डेबिट कार्ड हैविंग इनबिल्ट एक्सीडेंट इंश्योरेंस ऑफ 1 लाख। इसके अंदर जो भी अकाउंट होल्डर होता है, नॉट वी पीपल, उनको एक रुपए डेबिट कार्ड इशू किया जाता है जिसमें आपको एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो है वो 1 लाख रुपए का मिलता है। ठीक है, इसको जनधन योजना के अंदर जो लोग पुअर हैं उनको रुपए डेबिट कार्ड दे देती है गवर्नमेंट, जिसमें आपको 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है कि इफ समथिंग हैपेंस टू यू, यू कैन इंश्योर दैट मच अमाउंट फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। ओके, जनधन हो गया जी, पैसे भी आ गए। नहीं, बैंक अकाउंट तो सबके खुलेंगे, जिनके खुले हुए ऑलरेडी उनको नहीं लेंगे, तो वी आर टारगेटिंग दोज पीपल दोज आर नॉट हैविंग अ बैंक अकाउंट्स। जिन लोगों के बैंक अकाउंट नहीं है, अनओपन्ड अकाउंट्स हैं, उन लोगों के टारगेटेड अकाउंट है। अगर हमारे पास 4 बैंकों के अकाउंट है तो हमारे एक और खोल के तो कुछ बैंक अकाउंट का फायदा नहीं होगा ना। वी नीड टू टैप द 1.5 करोड़ पीपल दोज आर अनटैप्ड विद देयर बैंक अकाउंट्स। जिसमें बेनिफिट्स मिल रहा है वो उससे आप आधार लिंक कर देंगे तो आप उसको मिलना शुरू हो जाएगा। Are you getting? If I'm not gonna open up a new account, suppose, and if I get some kind of subsidy like of cylinder subsidy, so I don't need to go and open up a new account. It may be I can go and अगर मुझे अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर अपनी वो सब्सिडी वगैरह नहीं लानी, I'm not being sure about it, I may go and open a new account. But if you want, you can आपका रीअरेंज करके उसी में आपकी जो जो रिक्वायरमेंट उस अकाउंट की चाहिए वो आप यहाँ पर अटैच कर दे दो, तो आपकी वो सब्सिडी यहाँ मिलनी शुरू हो जाएगी। दैट सेम नंबर, सेम अकाउंट नंबर, सेम आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो क्या है, केवाईसी तो वैसे भी लिंक्ड हो गया है, तो वो अगर कर देते हो तो आपको उसके साथ भी मिल सकता है, उसी में आपकी सब्सिडी भी आ सकती है। बट गवर्नमेंट वांट टू अनटारगेटेड पीपल, जिनके पास नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था, उनको और पुअर लोगों को वो डेबिट कार्ड का 1 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा, नॉट टू ऑल, हम लोग को नहीं मिलेगा। चलिए, अभी हम हेल्थ बिल नहीं आए ना, चलो अब आ जाओ, एक और लेके फिर हेल्प करते हैं। जन सुरक्षा योजना, जन सुरक्षा योजना, JAN, जन मीन्स पब्लिक। जन सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंडर ही आता है, ये गवर्नमेंट रन करती है इसको। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है 2 लाख रुपए का। यस, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये स्कीम, जिसमें आपको सिर्फ प्रीमियम देना पड़ता है 12 रुपीज एनम, आपको साल के 12 रुपए देने पड़ते हैं, द प्रीमियम ऑफ ₹12 रुपीज पर एनम, और आपके पास 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये तो सब करा रहे हैं, even the urban people and the rich people are also going through the same. You have to pay only 12 rupees annually, और आपको अपने जिंदा रहने का सबूत देना पड़ता है कि we are being the continuation of that insurance, okay? And between the age of 18 to 70 कोई भी करा सकता है, age between 18 to 70। इसमें या तो आपका डेथ या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए या फिर आपकी डेथ हो जाए, तो उसमें आपको 2 लाख का आप क्लेम कर सकते हो इंश्योरेंस का, अगर आपने वो प्रीमियम 12 रुपीज पर मंथ पर एनम का भरते आ रहे हो, 4 साल से भर रहे हो, 10 ईयर्स से भर रहे हो, व्हाट रेस कुछ नहीं होता, कुछ होता है, कोई एक्सीडेंटल में परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है आई का, लेग का, देन यू विल गेट द 2 लाख रुपीज ऑन एन इंसिडेंस बेसिस। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, वो भी आपको इसी के अंदर, इसी की तरह की है वो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। जीवन ज्योति बीमा योजना ये भी आपको लाइफ इंश्योरेंस दे रही है 2 लाख का। जीवन ज्योति बीमा योजना ये भी आपको 2 लाख का प्रीमियम, 2 लाख का इंश्योरेंस देती है, लेकिन प्रीमियम जो है वो 330 रुपीज पर मंथ पर एनम है। इसका जो प्रीमियम है वो 330 रुपीज है जीवन ज्योति के अंदर। इंश्योरेंस का रिटर्न जो है वो एक्सीडेंटल 2 लाख रुपए ही है, और उसमें आप सिर्फ 18 से 50 इयर्स वाले लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। इस वाले 18 से 50 इयर्स, उसमें 18 से 70 इयर्स तक।
इसमें भी डेथ और अपने डिस्प्ले हाँ, मैं फिर उसको वो नहीं लेंगे ना बाद में that is come later on. People are not aware of any, so they are not getting. जनधन योजना हो गया, जन सुरक्षा योजना हो गया. मैम प्रीमियम ऑफ रुपीज 330, 330 रुपए आपको साल के देने पड़ेंगे, उसमें 12 रुपए देने पड़ेंगे. इसका ईयर चेक करना पड़ेगा, इसमें है नहीं, दिखा रही है, बट आई विल लेट यू नो पक्का. कौशल विकास हमने कर लिया ना. आदर्श ग्राम योजना, या ये कर लीजिए. आदर्श ग्राम योजना, संसद आदर्श ग्राम योजना, आदर्श ग्राम योजना. It is into 2014, Ministry of Rural Development only. इसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया है. इंस्टीट्यूशनल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और इसमें एक मॉडल विलेज 2020-24 तक कंप्लीट करने के लिए हमने टारगेट किया. इट मींस टू से दीज स्कीम्स एम्स टू डेवलप अ 5 आदर्श विलेजेस. 2019 तक हमने 3 आदर्श विलेज बना लिए. 2024 तक हमने 5 आदर्श विलेज बनाने हैं, जिसको हमने मॉडल विलेज का नाम दिया. मॉडल, मॉडर्न नहीं, मॉडल विलेज, आदर्श ग्राम, है ना. सो आदर्श विलेजेस का हमने नाम दिया, विच इज फॉर द 5 years एंड 5 बनाने हैं, 2 हमने बना लिए 1999. इसमें मेन इंस्टीट्यूशनल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है. लाइक कोई ऐसा विलेज जिसमें 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो, रोड ट्रांसपोर्टेशन सारी हो, हेल्थ, एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन, इक्विपमेंट सारे हो, तो वो एक आदर्श विलेज बन जाएगा. तो दैट इज कमिंग अंडर 2014 एंड 19 तक हमने 2 विलेज पूरे कर लिए. ज्योति बीमा योजना हो गया, सुरक्षा बीमा योजना हो गया. नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम्स, दैट इज फॉर फीमेल. नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम जो आपने प्रधानमंत्री जीवन, ये इससे पहले लिखी नहीं था, लिखा है जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा, देवर इन 2015 और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है. 2015 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. जनधन योजना भी 2015-14 में आई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है. नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, दैट वाज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ईयर 2016. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, इसमें बेसिकली 19 ईयर्स से अबव फीमेल हु इज प्रेग्नेंट, दे विल गिव 6,000 रुपी. 6,000 रुपी की उनको मदर को प्रोवाइड किया जाएगा फैसिलिटी, और उनको जो टोटल 6,000 है वो 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं. मतलब एक बार 6,000 नहीं दिया जाता, इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं. द सम इज प्रोवाइडेड नॉर्मली 12 to 8 weeks before the birth in 3 installments and can also avail even the death of the child. It doesn't mean like if she's pregnant and she's giving a birth to a dead baby, she'll not get a benefit. She will get a benefit, but the 6,000 rupees will be given and in 3 installments that will be given. That is basically into the rural areas so that we can give a more strengthen the and maternal mortality को reduce कर सकें हम. Done? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 सेम आ गई उसकी. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गरीब कल्याण योजना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 2016. इसमें
है तो गरीब कल्याण, बट समवेयर समहाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द टैक्स, द ब्लैक मनी विच इज बीन टेकन बाय द पीपल दैट कैन 50% बेसिस पे वो रिटर्न कर सकते हैं. सो इट वाज टू अपॉर्चुनिटी टू डिक्लेयर अनकाउंटेड वेल्थ और ब्लैक मनी, opportunities to declare uncounted wealth और black money. आपके जो पैसे आपने बचा के रखे हैं या ब्लैक मनी है उसको डिक्लेयर करने का कॉन्फिडेंशियल मैनर में. अनकाउंटेड वेल्थ एंड ब्लैक मनी इन कॉन्फिडेंशियल मैनर. जो हमारी जो मनी थी उसका 50% फाइन लगा के आपकी मनी जो है वो ब्लैक वाइट हो जाएगी. ठीक है जी. और जो आपका उसमें से 25% पैसा है अनडिस्क्लोज मनी का, इट इज इन्वेस्टेड इन द स्कीम विच कैन बी रिफंडेड आफ्टर 4 years. आपका पैसा आपके पास वापस नहीं आने वाला है, बट वो वाइट हो जाएगा, 4 साल के बाद आएगा. तो 25% जो है वो 50% उन्होंने उसका टैक्स काट लिया या आपको फाइन लगा दिया एक तरह से. और जो 25% पैसा मतलब 100 रुपीज थे, 50 तो चले गए, 50 रुपीज रह गए, 50 में से 25 रुपीज वो स्कीम में लगा देते हैं जो आपको 4 साल के बाद मिलेगी. 4 साल से पहले आपको पैसे नहीं निकाल सकते और उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे आपको, एंड 25 आज अपने पास ले जाइए. सो दैट इज टू क्रिएट अ लेस ब्लैक मनी. और वो ब्लैक मनी जो 50% रख लिए ना आपसे, वो गरीबों के कल्याण के लिए लगाइए. ठीक है जी. सोलर चक्र मिशन 2018 सोलर चक्र मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME के अंडर है ये. मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस 2018. इसमें मेन क्या था, विलेज क्लस्टर्स बनाना जहां पर सोलर के यूटिलाइजेशन को हम बढ़ा रहे हैं और उसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना. कि अगर हम सोलर पैनल्स का डेवलपमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली वी नीड पीपल टू इम्प्लीमेंट एंड टू इंस्टॉलेशन. उन सब के अंदर जो लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी रूरल एरियाज को, उनको डेवलप करना ताकि उनको इलेक्ट्रिफिकेशन मिल सके. ठीक है जी. या नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, पोषण अभियान भी बोलते हैं इसको, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन पोषण अभियान. इट इज 2018 पोषण अभियान इन 2018. ये आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. पोषण अभियान 2018, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन NNM, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन या फिर से बोलते हैं पोषण अभियान 2018 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. इसमें मेन क्या करना है, अंडर नरिश्ड लोगों को, विमेन एंड चिल्ड्रन को, हमने उनको न्यूट्रिशन स्टेटस को इंक्रीज करके ठीक करना है. वो एडोलसेंस चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग वुमेन, उन सबको मेन टारगेट किया गया है. ठीक है जी. न्यूट्रिशंस को डेवलप करना, चिल्ड्रन एंड एडोलसेंस, जो बच्चे बड़े हो गए, एडोलसेंस, चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग वुमेन, इन सबको न्यूट्रिशंस के लेवल को अपग्रेड करना. ये है तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही लिख लीजिए. प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन, प्रधानमंत्री श्रम योगी MWN मनधन, PMSYM इसका क्या में है 2019, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट 19. ये बेसिकली ओल्ड एज प्रोटेक्शन के लिए था, फॉर ओल्ड एज प्रोटेक्शन एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स. ओल्ड एज प्रोटेक्शन एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर. अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कौन से होते हैं,
seasonal because like farmer or vendors होते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होते हैं जो कहीं भी किसी भी जॉब में लगे हैं बट वो किसी रूल्स रेगुलेशन एंड ब्लैक एंड वाइट राइट अप के अंडर नहीं है, किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर नहीं है, तो उनको जो उनकी वेजेस हैं, जो उनके वर्किंग आवर्स हैं, वो किसी भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंडर नहीं आते हैं, जिनको किसी भी टाइम बुला सकते हैं, कितने मर्जी घंटे काम करा सकते हैं, जितनी मर्जी सैलरी दे सकते हैं, लीव्स का कंसेशंस का कोई रूल नहीं होता, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होते हैं। तो वो उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, लोग इस तरह से क्योंकि मैक्सिमम एट प्रेजेंट अनऑर्गेनाइज्ड वर्किंग ज्यादा है rather than organized working, so people want to have security. That was the situation was being offered. Done. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लिख लीजिए 2016 मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस 2016। इसका मेन था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 50 मिलियन LPG गैस कनेक्शंस, 50 मिलियन LPG गैस कनेक्शंस टू वुमेन बिलो पॉवर्टी लाइन, टू वुमेन बिलो पॉवर्टी लाइन। इसके अलावा और बहुत सारी आती रहती हैं जब जब जो जो प्रॉब्लम आई। एक पैंडेमिक की पॉलिसी है हमारे पास, पैंडेमिक में आई है, लिखना लिख लो नहीं तो, हाँ जी, पैंडेमिक वाली पॉलिसी हमारी जो लास्ट है वो है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। प्रधानमंत्री लास्ट है, ये लिखना लिख लीजिए, वैसे इससे रिलेटेड नहीं है, ये पैंडेमिक से रिलेटेड था। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, आत्मनिर्भर निधि इट्स इन 2020, आत्मनिर्भर निधि इन 2020। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स वेंडर्स के लिए जो पॉलिसी बनाई है, दैट इज ड्यूरिंग कोविड। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स 2020-20 it is a micro credit facility to street vendors, micro credit facility to the street vendors those are affected by covid, कोविड से जो इफेक्ट हुए उनकी एम्प्लॉयमेंट को दोबारा से रिजनरेट करने के लिए ये माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की गई वेंडर्स को, स्ट्रीट वेंडर्स को, ताकि वो दोबारा से लोन लेके अपने बिजनेस को सेटअप कर सकें। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, यू कैन गो एट वंस अगेन, एक बार थोड़ा सा रीड आउट कीजिएगा, जो बीच में कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग्स हैं उसको ऐड अपॉन कीजिएगा एंड ट्राई टू लर्न अप। नाउ वी कैन से द पॉवर्टी इज बीइंग ओवर, like a subject only, like a topic only. So if you will get ready for the test tomorrow, I can provide it. If you want the time to go through with the policies and programs in the deep study, I can give you one more day, whatever you will say. We have done with the basics. आप में से कई चेहरे मुझे नए लग रहे हैं जिन्होंने बेसिक्स में क्लास नहीं की है, they may take it's recording classes are there, you can may go for that one only. And हमने इससे पहले नेशनल इनकम किया है और पॉवर्टी का कंप्लीट टॉपिक किया। पॉवर्टी के साथ साथ हमने MPI भी कर लिया, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी कर लिया, स्टैटिक और करंट दोनों कर लिया है हमने पॉवर्टी का, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द पॉपुलेशन और अनएम्प्लॉयमेंट एंड सी और इन्फ्लेशन, एनी ऑफ द टॉपिक आई जस्ट टच्ड and then after we can go for, I'll just give you one day for to go through with the policies. Day after tomorrow we'll go for a test, but I'm not gonna announcing a test because once I will announce the test you people will go and vanish. I don't want this कि क्लास में 4 लोग दिखे टेस्ट के नाम से, I don't want it. So that's why you must prepared for that thing. In this week only we can go ahead. इसी वीक में हम लोग एक बार टेस्ट प्रिपेयर कर लेंगे। Done? That's it. ऑब्जेक्टिव अभी आप प्रीलिम्स के लिए आए हैं, अभी तो आप ऑब्जेक्टिव देंगे, जब आप फाइनल्स में आएंगे प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे तब हम वो करेंगे, अभी हम प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। एंड प्लीज गो थ्रू विद द क्वेश्चन पेपर्स, until unless you're not going through with the question papers you're not able to understand. टॉपिक पढ़ना समझना आसान है, टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में समझना मुश्किल है,
वो क्या पूछता है और आप समझते हैं क्या हो, सारा गैप वहीं पे रहता है. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ क्वेश्चन ही वांट्स टू आस्क एंड व्हाट ही इज गिविंग द ऑप्शंस. वो ऑप्शंस क्या दे रहा है, आपने रट्टा लगाया होता है कि इट प्रोवाइड्स द रिड्यूस इनइक्वालिटी, वो कहता है इट क्रिएट्स इक्वालिटी, आप कहते हैं नहीं इनइक्वालिटी था, इकट्ठा है. सो छोटे छोटे ना डज एंड डजंट, कैन एंड कैन नॉट, उसमें फर्क डाल दिया जाता है. सो प्लीज read the question very carefully. Then we'll go for the test in coming days. In the meanwhile, you can prepare your topic. If anything else is required from my side, you can ask so that I can give it. National income तो आपके पास है वैसे. Go for NCERT and then after Singhania. And if you are very carefully, easily reading the Singhania, then go for Ramesh Singh. एक और चीज मुझे आपसे करनी है डिस्कस. आप में से कितने लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण बाय किया हुआ है? प्रतियोगिता दर्पण आप सबको प्रतियोगिता दर्पण लेना ही चाहिए, लेना ही चाहिए. आपको जितना भी करंट है ना, चाहे वो इकोनॉमिक्स का है, चाहे वो बिजनेस का है, चाहे वो फाइनेंस का है, चाहे हमारे जितने भी इंडेक्सेस हैं, ग्लोबल इंडेक्स, ओपन इंडेक्स, इन्फ्लेशन इंडेक्स, सारे के सारे किस कंट्री के साथ हमारे क्या ट्रेड्स हुए हैं, कौन सी G20 मीट हुई है, कौन सी सार्क की मीटिंग हुई है, कौन सी क्वाड की मीटिंग हुई है, सारी मीटिंग्स, एवरी सिंगल थिंग रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमी इज अवेलेबल इनटू प्रतियोगिता दर्पण. और इतना शॉर्ट क्रक्स ऑफ द स्टोरी. अगर आप स्टूडेंट्स के पास प्रतियोगिता दर्पण अपनी नहीं है पर्सनली, 200 रुपए की बुक है, शायद 170-80 की या 200-250 की होगी, मैक्स टू मैक्स 250 की होगी. इफ यू विल गो फॉर द Amazon, है ना, गो एंड बाय ना यूनिवर्सिटी बुक डिपो और समवेयर वेयर यू वांट टू. प्लीज मस्ट हैव दैट थिंग. अभी तो खैर बहुत लेट हो गए हैं आप लोग कि सेशन की स्टार्टिंग में निकलते हैं और अब तक तो सेशन एंड आने वाला है, बट स्टिल कुछ चीज़ें फिक्स्ड हैं जो बदलने वाली नहीं है. और आपको कोई पेपर कल देने आए तो आज का क्वेश्चन नहीं आने वाला, इट मस्ट बी अ बिट ऑफ डिले. तो प्लीज गो फॉर इट. 200 रुपीज़ बिग इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, तो प्लीज गो फॉर इन्वेस्ट. नेक्स्ट जब ईयर आएगा तो नई बाई खरीद लीजिएगा, अभी ये वाली खरीद लो, 4 महीने अभी भी पड़े हैं, ठीक है. वैसे कुरुक्षेत्रा भी है बट PD इज कंपैरेटिवली बेटर. कुरुक्षेत्रा भी अच्छी मैगजीन है रीडिंग के लिए, बट आई बिलीव PD इज बेटर. Okay, go for it, must buy it. It is very much important for you people to understand the basic concepts. क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है, इसके साथ साथ आपने जनरल स्टडीज का रिजल्ट्स को भी देखना है, GK भी पढ़ना है. तो उसमें से आपके कुछ ना कुछ टॉपिक्स, चाहे वो हमारे ज्योग्राफी के हैं, चाहे वो हमारे ट्रेड्स के हैं, चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट के, आपके मिनिस्ट्रीज के सारे नाम, सब कुछ है उसमें. तो प्लीज़ बाय. आई डोंट नो व्हाई यू हैवंट बाय अभी तक. चलो कोई बात नहीं, नेवर लेट, go for it and buy. Thank you.